इंदिरा आगे मंदिर So here Excuse what? me, sir. Yes. Sir, repeat again step 3. एक्चुअली यहाँ पर ये थोड़ा सा इश्यू होता है इसमें व्हाइट बोर्ड में, जूम के व्हाइट बोर्ड में यही प्रॉब्लम है कि जो भी लिखा होता है वो गायब हो जाता है अगर ध्यान. Okay, sir. Okay, so let me write it again. It will take 1 or 2 minutes only, 1 minute only. Okay, so here what we have in this case, we have 0, don't care, and 1, don't care. In this case, we have don't care because we have 1 0. So complement हो रहा है और 0 हो रहा है. इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, D और 1. Next we have the present state 1, next state 1 means complement वाला होगा 1 1. Sorry, not complement वाला. We have the present state is equal to next state. तो JK के इस कॉम्बिनेशन के लिए होता है और किस कॉम्बिनेशन के लिए होता है, नेक्स्ट स्टेट हमें 1 चाहिए, मतलब 1 0. So here we have a don't care, here we have a 0. So you can easily draw this excitation table. So हमारे पास ये जो आउटपुट मिला, okay, let me draw the lines here so that you can easily differentiate all these rows. Okay, so हमने जो पहला स्टेप लिखा था, the first step was, the very first step you should know is step 1 was flip-flops should be known. The second step was what? This is the present state next state table यहाँ से यहाँ तक, and this is the excitation input or excitation table. So the next step is the present state next state table for unknown flip-flop. Unknown flip-flop here is D flip-flop. Okay. And third step is, this is the second step, this is the third step. Third step is what? The excitation table for known flip-flop. यही तो था थर्ड स्टेप. अभी किसने पूछा थर्ड स्टेप? सर मैंने पूछा था. Okay, Maya. So excitation table. So this is how we have created the excitation table. So this is the present state next state table यहाँ तक, और उसके बाद हमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों मालूम है. वी वांट दिस नेक्स्ट स्टेट एंड दिस नेक्स्ट स्टेट इज बेस्ड अपॉन द डी इनपुट. सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेट एंड दीज आर द एक्साइटेशन. So here I am writing excitation input. Okay, so this is the third step. Now fourth step, step 4 is nothing but to get the next state decoder part. Next state decoder. So we have to get the value of this flip-flop in terms of जो डी इनपुट हमें मिलेगा वो डी इनपुट हमें निकालना है. सो बट दैट इज डी इनपुट विल बी इक्वल टू सम वैल्यू ऑफ दिस जेके. ओके, सो जो भी इनपुट हमें मिलेगा दैट इनपुट विल बी इक्वल टू, हमारे पास फ्लिप फ्लॉप कौन सा है यहाँ पर? वी ऑलरेडी हैव व्हिच फ्लिप फ्लॉप? जेके फ्लिप फ्लॉप.
Okay, so we have the JK flip-flop, and here in this case, we want the D flip-flop. So in this case, हमारे पास यहाँ पर जो भी इनपुट है, इनपुट क्या है? इनपुट है ये प्रेजेंट स्टेट और डी, और हमें क्या चाहिए? ये जे का वैल्यू चाहिए. ओके, सो हियर कितने सारे कॉम्बिनेशंस हैं? अगर ये जे के हम इनपुट जे के कॉम्बिनेशन को देखें तो जे के लिए हमें हमारे पास यहाँ 4 वैल्यूज मिल रहे हैं, और इनपुट जो है हमारे पास, वो इनपुट कौन कौन सा है? इनपुट है Qn और D. ओके, सो बेस्ड अपॉन दैट वी कैन क्रिएट अ के मैप. आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट के मैप में मैं दिखा रहा हूं. वी हैव द इनपुट एज D and Qn. So this is the K map for J. यहाँ values put करें. You can see here that we have written Q1 here and D here. So the value of Q1, you can see here that if we are writing 0 and 1 here, we will have a 0 and 1 here. तो यहाँ से yes, Prasenjit. So you can see here. Okay, let me change the color. Here we have a Q1 0 and D as 0. So Q1 as 0 and D as 0. So we are getting this box. It is filled with 0. Next, we will have 0 here and 1 here. For that particular combination, the value of J is 1 here. Okay. So for Q1 0 and D1. So Q1 0 and D1, we will have 1 here. And except other cases is don't care. Okay, so what we can see here, so we want to get the value of J. So in this case, we have to make the combination. We have to make the combination. So कौन सा combination हम बना सकते हैं? We should have this possible combination. Are you getting that? क्या इसके अलावा कोई और combination बना सकते हैं? क्या ये जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम? बिकॉज यहाँ पर एक 0 है, सो वी कैन नॉट टेक दिस 0 इनटू द ग्रुपिंग. ओके, सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल चॉइस. यहाँ से अगर हम देखें तो व्हाट शुड बी द आउटपुट? क्या आएगा? कॉमन क्या दिख रहा है? 1 बार. 1 बार. हाउ इट इज? सर डी आ जाए. हम अगर यहाँ से देखेंगे, क्योंकि वर्टिकली देखेंगे तो यहाँ और यहाँ देखेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशन इन दोनों कॉलम्स में आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ कुछ कॉमन हमें नहीं दिख रहा है. बट जब हॉरिजॉन्टली देखेंगे यहाँ पर, तो वी विल हैव द वैल्यू ऑफ डी एज 1 फॉर बोथ ऑफ दीज बॉक्सेस. सो हियर डी, इसका मतलब क्या है? जे इज इक्वल टू में क्या मिल रहा है? डी यहाँ पर. ठीक है. नाउ के मैप फॉर के के लिए देखें तो हम फिर से के मैप बनाते हैं. डी और Q1 वैल्यूज पुट करें. कहां पर हमें 1 दिख रहा है? 1 यहां दिख रहा है, और ये 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? Q1 1 और D 0. Q1 1 और D 0 यहाँ पर, और डोंट केयर कहाँ दिख रहा है? यहाँ और यहाँ. इसका मतलब है 0 यहाँ पर. Q1 0 Q1 0 D 0. Q1 0 D 0 यहाँ है, और कहाँ? Q1 0 D 1. Q1 0
or D1 here, and here it is 0. So please tell me what is the combination? This one. Am I right? Yes, sir. So what is the value we are getting from this combination? Here we can write, yes, it is D bar. क्यों? क्योंकि यहाँ D का value 0 है. So here we can get the value of K is equal to D bar. Okay. Now we can make the next state decoder part. So already we have the JK flip-flop. We have the J and K flip-flop. We have the output Q1 and Qn bar. Okay. Now, what is the value of J? You can see here, J is equal to D. So here we have a D input and the value of D is equal to value of J. So it is shorted. And next, the value of K is equal to value of D bar. So how we can get D bar from D? By using not get. Using a NOT gate. Okay. So we will have one NOT gate here, and it is get into the K input. Okay. So we can see that the value of J is equal to D and K is equal to D bar. Okay. So this is the portion of the next state decoder circuit. So हमारे पास क्या था? हमारे पास था JK फ्लिप फ्लॉप और एक छोटा सा एक डिवाइस लगाकर हमने उस JK फ्लिप फ्लॉप को क्या किया? D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. So this is nothing but the next state decoder. Sorry. Next state decoder, and this is the JK flip flop. ये हमें पास ऑलरेडी दिया हुआ था. So इसी तरीके से इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करके the next step is step 5. Realization of required flip flop. तो इस तरीके से हम K-मैप का इस्तेमाल करके हमने आउटपुट मतलब इनपुट को निकाला जो भी हमारे पास फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग. ओके. सो सारे फ्लिप फ्लॉप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड. किन्हीं का डाउट है कोई? किन्हीं का कोई डाउट है? नो सर सर. इसमें क्वेश्चन कैसे अराइज होगा सर? क्या क्वेश्चन कैसे अराइज होगा? यस सर. क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दैट रियलाइज दिस फ्लिप फ्लॉप यूजिंग दैट फ्लिप फ्लॉप, रियलाइज अ जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप, रियलाइज अ डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, ये रियलाइज अ जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आता है. सर सारा कन्वर्जन आना चाहिए. हाँ, कन्वर्शन सारा आना चाहिए क्योंकि कोई भी कन्वर्शन पूछ सकता है. प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं. क्वेश्चन इससे आता है. ठीक है, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास और कुछ क्वेश्चन? मैंने गूगल क्लासरूम में हर एक लैब के लिए लिंक क्रिएट कर दिया है. जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 फरवरी का लास्ट डेट है. आप लोग सभी लोगों को लैब मैनुअल सबमिट करना है स्कैन करके, और जो D2D स्टूडेंट्स हैं वो उनको भी सबमिट करना है, बट विद इन आफ्टर 1 to 2 days. सो आप लोगों का वाइवा जो है वो 12th या 13th तक फिनिश हो जाएगा. तो जो रिकॉर्ड है वो सभी का रिकॉर्ड सबमिट होना चाहिए. तो D2D स्टूडेंट्स भी सबमिट करेंगे. यू कैन सबमिट इट अप टू 13.
D2D students have to सर Sir, वर्चुअल लैब जो आप क्रिएट किए हैं वर्चुअल लैब में करके करना है या फिर लिख के? नहीं, लिख कर ही करना है। जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपने मैनुअल में अटैच करना है। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, दैट इज एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, देन द थियोरेटिकल पार्ट, देन द ऑब्जर्वेशन और वॉट एवर यू आर गेटिंग। ओके, यूजिंग सर एक्सपेरिमेंट 1 और 2 का ना? आज लैब कराऊंगा, सेकेंड हाफ में लैब है। आज सेकेंड हाफ में लैब है। ओके सर। तो आज जहां तक हो जाएगा वहां तक मैंने लिंक सारे लैब के लिए क्रिएट कर दिया है, बट आज जहां तक होगा आप लोगों का वहां तक आप लोगों को सबमिट करना होगा D2D वाले स्टूडेंट्स को, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको सारे सबमिट करने हैं। ठीक है सर रेगुलर स्टूडेंट्स का DLD का वाइवा भी होगा? हाँ, DLD का वाइवा भी होगा। सर तो कब तक होगा? डेट तो उसका आया नहीं अभी। वो डेट 13 तारीख के अंदर का ही होगा, 11 तारीख का होगा शायद। वो डेट आ जाएगा आज या कल। ठीक है, और किन्हीं का डाउट कोई? आवाज जा रही मेरी? यस सर। ओके ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर। अभी नेक्स्ट क्लास का कोई लिंक नहीं आया क्या? सर हाँ हाँ गूगल क्लासरूम का यस, गूगल क्लासरूम का Aparna, what you have told, I am not able to hear you. अपर्णा तुमने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया। So maybe you are telling